کریں گے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کہتے ہیں کہ بھارت افغان سرزمین کو استعمال کر کے سی پیک کو نشانہ بناتا ہے. بھارتی دہشت گرد چینی افرادی قوت اور مقامی لیبر پر حملے کرتے ہیں. ثبوت دوسہے میں سامنے لائے. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ ایک انٹرویو میں ہم مکمل تیار ہیں, چیلنجز سے نمٹ رہے ہیں. سی پیک کو نقصان پہنچانے کی ہر بھارتی سازش کو ناکام بنائیں گے. سی پیک کی سیکیورٹی کے لیے 2 ڈویژن فورس تشکیل دے دی. سی پیک ہر روز پہلے سے زیادہ ترقی کرے گا. Pakistan Army has been part of every effort that has been undertaken by the government, by the people of Pakistan to control this. You've talked of NCOC. I'm sure you may even have visited the place. It's being manned by the military and their civil counterparts. When this setup came, it was when we came up with this setup, the idea was to better articulate the resources. So it worked really well. We started with deployment of Pakistan Army soldiers across Pakistan, all across, when we were trying to kind of exercise some smart lockdowns. The information technology part has also been supplemented by the the capability that the Army has. So at every level, may it be information technology, may it be implementation and execution of different instructions being given by the government, Pakistan Army has been in the thick and thin of all these things. So what has been Pakistan Army's role during second wave of COVID? As far as the second wave is concerned, I believe ever since we started fighting this pandemic, there's been a lot of capacity building, and we've enhanced our ability. We've been able to enhance our ability to fight this in a better way. So the second wave, as it has come in, we should be tackling it well. And as we go through it, I must acknowledge the role of the frontline workers who have fought through this and who are again on the front lines. And I would also like to make a special mention of how the media has helped in educating the masses about what this pandemic is all about, and how to keep yourselves safe in these circumstances. I think ISPR being the information arm of the NCOC, I think what we've seen media, the way they've contributed, I believe the kind of campaigns that we've been able to run on different channels during this pandemic, it goes in billions of rupees, and it's been free of cost. So it's been a very, very positive role. But I would also like to emphasize here that we need to be extremely careful in this second wave, and we need to help each other, and we need to be more careful than we were before, and only then we will be able to come out of it. کرونا سے نمٹنے میں پہلے دن سے پاک فوج ہر حکومتی کوشش کا حصہ. آگاہی مہم میں میڈیا کا بھرپور کردار. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی میڈیا کی تعریف. کہا این سی او سی میں فوجی اور سویلین کی مربوط نمائندگی ہے. سمارٹ لاک ڈاؤن یقینی بنانے کے لیے فوجی دستے تعینات کیے گئے. فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہم سب کو زیادہ احتیاط اور ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے. Whole region. Indians see CPEC as a game changer for the region, and it is a game changer for the region. It's offering connectivity to the whole region, and with that, Pakistan becomes a connectivity hub for this whole region. And I think this is a game changer in the sense that this project has the ability, the potential to bring prosperity to this whole region
by connecting everyone. It's not just a north-south thing. So and for Pakistan, it's basically an economic project, and that's what the project's name also says: China-Pakistan Economic Corridor. So the kind of threat that it is facing from the Indians is obviously they've started with the security threats that we are facing. There is a lot of terrorist activity going on around it, and they've also started bringing in some very strange arguments about where it starts from and where it ends, and how Indians are not very comfortable with the project passing through certain territories in Pakistan. So the security threat around the project and different stages of the project, it has actually been increasing with the passage of time. Somewhere Indians decided that there is a timeline beyond which this project becomes irreversible. Okay. And they feel that the progress of this project must be retarded as much as possible so that it doesn't cross that timeline. बरतानवी प्रिंस ऑफ वेल्स शहजादा चार्ल्स का वजीर आजम पाकिस्तान से राबिता हुआ। इमरान खान ने दौरान गुफ्तगू आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका काविशों पर जोर दिया है। शहजादा चार्ल्स ने वजीर आजम इमरान खान से टेलीफोनिक राब्ता करके दौलत मुश्तरका ममालिक के माबैन करीबी और मुनफरद ताल्लुकात के अज़्म का इजहार किया और कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान बैनुल अक़वामी सतह पर ताल्लुकात बेहतरीन दोस्ती का मज़हर हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुश्तरका आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका काविशों पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने मौसमियाती तब्दीली और तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तफ़ाक़ किया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि खुसूसी अफराद के लिए एहसास कफ़ालत पॉलिसी से 20 लाख ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। खुसूसी अफराद को माहाना 2000 रुपये वजीफा दिया जाएगा। खुसूसी अफराद की बेहतरी की समत में ये हुकूमत का अहम कदम है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं 13 दिसंबर को जलसा होकर रहेगा। लाहौर जलसा हुकूमत के खिलाफ रिफरेंडम होगा। जाती उमरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था मुल्तान में जो रवैया हुकूमत ने इख्तियार किया वो आमरीत में भी नहीं देखा। इमरान नियाजी ने सियासी रवादारी का जनाजा निकाल दिया। देखिए, ये जो रवादारी का कल्चर है ये हमारे मुआशरे की, हमारी रवायात की जो है ये बुनियाद है, और जो साहबान भी जिनका जिक्र ख्वाजा साहब ने किया है तो वो एक आला रवायत के मुताबिक जो कि इस्लामिक भी है और हमारी यानी पंजाब की भी वो रवायत है, तो उसके मुताबिक जो लोग तशरीफ़ लाए हैं तो उनके आने को जो है उनके इस जज्बे और इस रवादारी तक ही महदूद रखा जाए। इसे मैं समझता हूँ कि कोई सियासी माने पहनाना जो है ये मुनासिब नहीं है। दूसरी जानिब ख्वाजा साद रफीक कहते हैं महंगाई बढ़ गई, गुर्बत बढ़ने से आवाम को मुश्किलात का सामना है। 13 दिसंबर को जलसा होगा, लाहौरियों को रुकावटें हटाना आती हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि लाहौर का जलसा हुकूमत के खात्मे का एक अहम कदम होगा। जमहूरियत के नाम पर आमरीत मुसल्लत है। जमहूरियत के नाम पर मुल्क में फस्तायत मुसल्लत है, और इसका सबूत सबसे बड़ा ये है कि मौजूदा हुकूमत ने अपने पूरे टन्योर में सिवाय झूठ बोलने के, बोहतान तराशी के, यावा गोई के और अपने सियासी मुखालफीन को जेलों में डालने के कोई दूसरा काम नहीं किया। बड़ा अफसोसनाक दिन है। जाहिर है आज शहबाज साहब और हमजा शहबाज साहब ने वापस जाना है कुछ देर के बाद, और जब उनकी वालदा मोहतरमा की रहलत हुई तो इन्हें चाहिए था उसी दिन उनको रिलीज़ करते ताकि वो आके अपने ख़ानदान के साथ गम की घड़ियों में शामिल होते, लेकिन इन्होंने मैक्सिमम डिले किया और अब भी पैरोल की मुद्दत को इन्होंने घटाया है। और 24 घंटे रह जाते तो कोई क़यामत नहीं आ जानी थी। बहरहाल इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि पाकिस्तान के लोग PDM के प्लेटफॉर्म पर इस फाशिस्ट हुकूमत को रुखसत करने के लिए मुत्तहिद हो चुके हैं। मुल्क भर में PDM की जमातों ने
बहुत अजीम शान अवामी इज्तिमा किए हैं और वो हर इज्तिमा अवामी रेफरेंडम था। ये हुकूमत लेजिटिमेट हुकूमत नहीं, ये जानते हुए कि वोट चोरी किए गए, और हम में से बाज़ एग्जाम्पल्स भी आपके सामने खड़े हैं, हम जो जेलें काट के आए हैं और जिनके इलेक्शनों में इन्होंने चूना लगाया था, हमने इनको 2 साल 2.25 साल बर्दाश्त किया, इन्होंने कुछ परफॉर्म नहीं किया। बजाय इसके कि ये मुल्क को आगे लेके जाते, इन्होंने पाकिस्तान की माशी तरक्की को रिवर्स गियर में डाल दिया, जमहूरियत के नाम पे आमरीत मुसल्लत की, और लोगों की भूख में। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं 13 दिसंबर के जलसे से हुकूमत को समझ आ जाएगी, इमरान खान इस्तीफा दे दें तो आपके लिए बेहतर होता। शहबाज शरीफ को बगैर किसी वजह के जेल में रखा हुआ है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की एक धेले की करप्शन भी साबित नहीं की जा सकती। 13 दिसंबर को जो होने वाला है, आपको ये बात भी समझ आ जाएगी कि इस्तीफा अगर आप 13 दिसंबर से पहले दे देते तो आपके हक में बेहतर होता। शहबाज शरीफ को बगैर किसी इल्जाम के एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सका ये सिलेक्टेड टोला। इमरान साहब ने खुद तस्लीम किया, इमरान साहब ने नैब को इस्तेमाल करके शहबाज शरीफ के खिलाफ झूठे केसेस बनवाए। सुप्रीम कोर्ट में जब नैब को सबूत पेश करने का वक्त आया तो उन्होंने अपनी दरखास्त वापस ले ली। अभी भी जिस केस के अंदर वो जेल में हैं, वो केस क्या है, मैं पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ। वो केस ये है कि इमरान साहब ने शहबाज शरीफ को जेल में बंद करके अवाम का आटा और चीनी चोरी करना था। वो केस ये है कि ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को जेल में बंद करके, सियासी मुखालफिन को जेलों में बंद करके, पंजाब के ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को जेल में बंद करके 18 महीने, सबसे ज्यादा सियासी कैद, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हमजा शरीफ, आज 18 महीने हो गए। केस ये है कि 400 बिलियन 400 अरब का चीनी में डाका डालना था। शहबाज शरीफ को जेल में इसलिए बंद किया गया है और उनकी केस की हकीकत यह है कि 225 अरब का डाका आटे में डालना था। मुल्क की महंगी तरीन LNG इंपोर्ट की जानबूझ के डिले की, क्योंकि सीधे हाथ और उल्टे हाथ पर फर्नेस ऑयल पावर प्रोजेक्ट्स और पावर प्लांट्स के। बुलेटिन में बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं लाहौर जलसा हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम साबित होगा। अब वक्त आ गया कि इमरान नियाजी को घर भेजा जाए। नारंग मंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल का कहना था मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को धांधली के जरिए खत्म किया गया। PTI हुकूमत ने पंजाब को एक यतीम सूबा बना दिया है। लाहौर में PDM का जलसा इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम साबित होगा, और ये हुकूमत जो आवाम पर महंगाई, बेरोज़गारी और इंतहा की तबाही मुसल्लत करने का ज़रिया बनी है, अब वक्त आ गया है कि इसको घर भेजा जाए। 2.25 साल से पाकिस्तानी कौम का सब्र अब लबरेज हो चुका है। एक ऐसी हुकूमत जो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेकर जा रही थी, उसे धांधली के ज़रिए महरूम किया गया। आज अगर वो मंसूबा नारोवाल में बन चुका होता जिसकी बुनियाद मुस्लिम लीग नून ने रखी थी और न्यू लाहौर रोड 2 रोया हो चुकी होती, तो ये हादसा ना पेश आता जो आज हमें पेश आया है, जिससे 9 कीमती जानों का नुकसान हो गया है। ये हुकूमत जिस दिन से आई है तरक्की के सब मंसूबों को रोल बैक कर रही है। ये हुकूमत जिस दिन से आई है हर तरक्याती मंसूबे को बर्बाद कर रही है। आज पूरे पंजाब में सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। 2.5 सालों में इन सड़कों की मेंटेनेंस के लिए 1 रुपया नहीं खर्च किया गया। अब अगली हुकूमत को अरबों रुपए लगा के ये सब सड़कें नहीं बनानी पड़ेंगी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी कहते हैं
سردار اختر مینگل کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، خواہش ہے کہ بی این پی دوبارہ اتحاد میں شامل ہو۔ کوئٹہ میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے قاسم خان زوری نے کہا کہ تحریک انصاف سمیت اگر کسی بھی جماعت کا کوئی بھی ممبر کرپشن میں ملوث ہوا تو اس کے خلاف بلا تفریق کارروائی ہوگی۔ اسحاق ڈار کے بارے بات کرتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کو لوٹ کر گئے، انہیں پاکستان کی ضرورت تب ہی ہوئی جب انہیں کمانا تھا۔ اسحاق ڈار نے کہا اپوزیشن عوام کی زندگیوں کو داؤ پر نہ لگائے، اس وبا کے جانے کے بعد جلسے جلوس کریں، کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اور یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ٹوڈے خبر سب سے پہلے، یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب، خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو آگے بڑھنے کا۔ لاہور لیڈز یونیورسٹی ممکن بناتی ہے، بزنس اسٹڈیز سے لے کر کمپیوٹر سائنسز، کامرس سے لے کر انجینئرنگ تک، کوالٹی ایجوکیشن، جاب پلیسمنٹ اور شاندار کیریئر پاتھ۔ لاہور لیڈز یونیورسٹی۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو اپڈیٹ کریں۔ وفاقی وزیر انسداد منشیات عاصم خان سواتی کہتے ہیں اپوزیشن کو عوام، قانون، آئین اور جمہوریت سے کوئی غرض نہیں، جو ایک دوسرے کی شکل برداشت نہیں کرتے تھے، چوری کا مال بچانے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ عاصم سواتی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنے کے دعوے دار آج مل کر جلسیاں کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار نے نواز شریف کو بچانے اور ملک کی بدنامی کے لیے جو عمل کیا اس کا نتیجہ سب نے دیکھ لیا ہے۔ عبرت ناک رسوائی اور ذلت اسحاق ڈار کا مقدر بنی، جس نے ملک کی دولت لوٹی اور چوری کی۔ اللہ کی ذات سب جانتی ہے، ملک کا پیسہ لوٹنے والوں کا ایسا ہی عبرت ناک انجام ہونا چاہیے۔ وفاقی وزیر نے پیپلز پارٹی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اپنے گھر میں تو ٹیسٹ کے بعد لوگوں کو آنے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن پی ڈی ایم عوام کو جلسوں میں بلوا رہے ہیں۔ اپوزیشن ہوش کے ناخن لے اور عوام کی زندگیوں سے نہ کھیلے۔ اپوزیشن والوں کو کم از کم عوام کی زندگیوں کی تو پرواہ ہونی چاہیے۔ فردوس عاشق اعوان کہتی ہیں پی ڈی ایم لاشوں پر سیاست کرنا چاہتی تھی، لاہور جلسے کی درخواست دی نہیں، شور مچانا شروع کر دیا، اجازت مانگی گئی تو قانون کے مطابق غور ہوگا۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے ٹویٹ میں کہا وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر قیادت پنجاب میں ریکارڈ قانون سازی کی گئی۔ بزدار حکومت نے اب تک پنجاب اسمبلی سے 68 بلز منظور کروائے، جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ دہائیوں سے رائج قوانین کی تجدید کے ساتھ خواتین، بچوں اور معاشرے کے کمزور طبقات کا تحفظ قانون سازی کا محور ہے۔ فردوس عاشق اعوان کا کہنا تھا کہ لوٹا پیسہ واپس لینے، کرپشن کے خاتمے اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے بنائے جانے والے جدید قوانین ملک کی ترقی میں معاون ثابت ہوں گے۔ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں احتساب کے خوف سے لیگی قائدین اب حکومت کو دھمکیاں دینے پر اتر آئے ہیں۔ عوامی مینڈیٹ سے بنی حکومت کے سامنے ان گیدڑ بھپکیوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ فیاض الحسن چوہان نے ایک بیان میں کہا کہ ایک منتخب حکومت کو گرانے اور جمہوری تسلسل کو توڑنے کی باتیں آئین اور قوم سے غداری ہے۔ پی ڈی ایم کے پاس دلائل ہوتے تو انہیں دھمکیوں کی ضرورت نہ پڑتی۔ ہم واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ٹوڈے خبر سب سے پہلے، یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب، خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو آگے بڑھنے کا، یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا، ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن۔ جب بات ہو کوالٹی ایجوکیشن کی تو لیڈز گروپ آف کالجز دے رہا ہے آپ کے
सबसे पहले। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि वफाकी वजीर बराए मुवासलात मुराद सईद कहते हैं PTI हुकूमत मेगा प्रोजेक्ट के लिए सिस्टम ला रही है। एक तकरीब में खिताब करते हुए मुराद सईद ने कहा, पिछले दौरे हुकूमत में लेक ऑफ प्लानिंग की वजह से बहुत से प्रोजेक्ट्स ताखीर का शिकार हुए। PTI हुकूमत ऐसा सिस्टम ला रही है जिसमें कोई भी प्रोजेक्ट ना लेट नहीं होगा, प्रोजेक्ट कास्ट भी कम आएगी। हम जब प्रोजेक्ट के लिए पहले से प्लानिंग करते हैं और आपको के सामने बड़े ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लेक ऑफ प्लानिंग की वजह से 3 चीजों का नुकसान हुआ मुल्क को। एक, आपका जो कास्ट एस्केलेशन उसकी हो गई, टाइम डिले उसमें आ गया और वो प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होने की तरफ भी नहीं बढ़ सका। लिहाजा जब आपके पास ये टेक्नोलॉजी भी होगी, सिस्टम होगा, तो आपको किसी भी प्रोजेक्ट के आगाज से पहले प्लानिंग में आसानी हो जाएगी। दूसरा, हमने ये कर दिया। तीसरा, सेक्रेटरी साहब ने बात की ITS के ऊपर। देखिए, पिछले कुछ अरसे में एक तो हमारी ट्रैफिक वॉल्यूम में जितना इजाफा हुआ है, मेरे ख्याल से अगर परसों जब मोटरवे की इवेंट था और उनके पास जो डेटा तकरीबन 200% से ज़्यादा हमारे पिछले चंद सालों में जो ट्रैफिक वॉल्यूम है उसमें इंक्रीज आया है। एक, दूसरा, ये जो आपका पिशावर से लाहौर मोटरवे था, ये अब आप कराची तक पहुंचा रहे हैं, तो सारे मोटरवे ही इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा उससे क्या हुआ कि हर टोल प्लाजे के ऊपर, हर मकाम के ऊपर आपका ये ट्रैफिक वॉल्यूम भी बढ़ता गया और उस पर प्रेशर आ गया। हमने क्या स्टेप किया, ITS का तो आगाज हो गया, उस सिस्टम को बेहतर कर रहे हैं। 2 प्रोजेक्ट्स मेरे ख्याल से जो हमारे मोटरवेज है उसके ऊपर, लेकिन हम अपने तमाम जो टॉलिंग सिस्टम है उसको ई टॉलिंग पे लेके जा रहे हैं, तो उससे भी शफाफियत के साथ साथ आपके लोगों के लिए आसानी होगी। फिर उसके बाद हमारे जितने पाकिस्तानी हैं, क्योंकि हम ई बिल्डिंग के ऊपर बात हो रही है, लेकिन मुझे अपने NHA के जो 2 और इनिशिएटिव्स हैं, क्योंकि इसका भी ताल्लुक टेक्नोलॉजी से फ़ायदा लेना ही है, तो हमने 2 और चीज़ें जो की। एक ये कि NHA के ऑफिसर्स को मैं यहाँ पे खिराज तहसीन पेश करता हूँ। उलमा कराम ने हुकूमत को कोरोना SOPs पर अमल की यकीन दहानी करवा दी। सदर ममलिकत आरिफ अलवी कहते हैं, कोरोना से बचाव के लिए अल्लाह से रुजू जरूरी है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी की जेर सदारत कोरोना के हवाले से वीडियो कॉन्फ्रेंस में कोरोना से बचाव के लिए मुल्क भर में यौम दुआ मनाने का फैसला किया गया है। सदर ममलिकत ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए अल्लाह से रुजू जरूरी है, जबकि वफाकुल मदारिस ने कोरोना SOPs पर अमल करने की यकीन दहानी भी करवाई। मौलाना हनीफ जलंधरी ने कहा कि मदारिस में कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल कर रहे हैं। मुफ्ती इकबाल चिश्ती का कहना था कि अपोजिशन जमातें हर मामले में कीड़े निकालना छोड़ दें और कोरोना को संजीदा लें। इजलास में कोरोना गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर समेत दीगर सूबों के गवर्नर्स, वफाकी वज़रा और उलमा शरीक हुए। आपको बताएं कि लापरवाही और बेहतियाती ने कोरोना की दूसरी लहर को बेकाबू कर दिया। 24 घंटों में मजीद 39 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 8,205 हो गई। मजीद 3,500 अफराद में कोरोना की तशखीस से मरीजों की तादाद 4,06,810 हो गई। 3,47,000 मरीज सेहतियाब हो चुके। 51,654 मरीज जेर इलाज हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 39 मरीजों का इंतकाल हो गया। पंजाब में 3,091, सिंध में 2,968, खैबर पख्तूनख्वा में 1,378, बलूचिस्तान में 169, गिलगित बल्तिस्तान में 97, आज़ाद कश्मीर में 173 और इस्लामाबाद में 329 मरीज इंतकाल कर चुके। 24 घंटों में मजीद 3,500 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 1,21,087, सिंध में 1,77,625, बलूचिस्तान में 17,268, इस्लामाबाद में 31,165, आज़ाद कश्मीर में 7,067 मरीज हो चुके। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 15,02,000 हो गई। मरीजों की तादाद 6,50,00,000 हो गई। 4,46,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके। मूजी कोरोना वायरस के बाद जारी। अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल नहीं किया जा सका। अमेरिका में 2,80,000, ब्राजील में 1,74,531, भारत में 1,39,000, मैक्सिको में 1,08,000, रूस में 41,607, फ्रांस में 53,816 और सऊदी अरब में 5,919 अमवात हो चुकी हैं।
कोरोना की वजह से स्कूलों की बंदिश से पाकिस्तान में तकरीबन 4 करोड़ बच्चों की तालीम मुतासर होने का खदशा है। आलमी इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक जनूबी एशिया के ममालिक में स्कूल जाने की उम्रों के 88% बच्चों के पास घरों पर इंटरनेट की सहूलत दस्तयाब नहीं है। कोरोना से कबल भी तालीम और तरबियत और बेहतर रोजगार हासिल करने के हवाले से नौजवानों ने एक बड़े तबके को इंटरनेट तक रसाई की जरूरत थी। यूनिसेफ के मुताबिक डिजिटल तकसीम अदम में मसावात का सबब बन रही हैं, जिसकी वजह से पहले ही मुख्तलिफ ममालिक और मुआशरे बाहम मुनक़सम नजर आते हैं। उधर कराची के साहिल हॉक्स बे पर जेर तामीर दूसरा एटमी बिजली घर तकमील के आखिरी मराहल में दाखिल हो गया। कैनोप्टो के प्लांट में फ्यूल लोडिंग का अमल शुरू हो गया है। प्लांट से बिजली की बाकायदा पैदावार आइंदा साल अप्रैल से शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के तर्जुमान के मुताबिक 1100 मेगावाट बिजली की पैदावार सलाहियत के हामिल एटमी बिजली घर में एटमी मवाद डालने का आगाज कर दिया गया है। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल नदीम जकी, चेयरमैन एटमी तवानाई कमीशन मोहम्मद नईम, मेंबर पावर एटमी तवानाई कमीशन और चीन के आला अहदेदार मौजूद थे। जदीद खुदकार हिफाजती निज़ामों से आरास्ता 3rd जनरेशन एटमी पावर प्लांट है, जिसकी तामीर अगस्त 2015 में शुरू हुई और अप्रैल 2021 में तमाम तर हिफाजती और ऑपरेशनल जांच के बाद ये बिजली की बाकायदा पैदावार शुरू कर देगा। साबिक वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली की नमाज जनाजा रुझान में अदा कर दी गई। साबिक वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली की नमाज जनाजा रुझान में जमाली में अदा कर दी गई है और जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा हज़ारों अफराद ने शिरकत की। उन्हें आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली के इंतकाल पर सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और दीगर शख्सियात ने इजहार अफसोस करते हुए मरहूम के दर्जात की बुलंदी और मग़फ़िरत की दुआ की है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और सेनेटर सिराजुल हक ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वालिदा की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। इस मौके पर मरियम नवाज भी मौजूद थीं। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही मुस्लिम लीग काफ के वफ्द के हमरा मॉडल टाउन पहुंचे, जहां शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात की। उन्होंने शहबाज शरीफ से वालिदा की वफात पर ताज़ियत की और मरहूमा की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। इस मौके पर मरियम नवाज, हमजा शहबाज, मोनिस इलाही, शाहिद खान अब्बासी, कामिल अली आगा, राना सनाउल्लाह, सन इकबाल भी मौजूद थे। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने भी वफ्द के हमरा शहबाज शरीफ से मुलाकात की और वालिदा के वफात पर इजहार अफसोस किया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेरोल पर रिहाई की मुद्दत खत्म। दोनों रहनुमाओं को कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को उनकी वालिदा के इंतकाल पर पेरोल पर रिहाई मिली थी। 5 रोज बाद लीगी रहनुमाओं की पेरोल पर रिहाई में 24 घंटे की तोसी कर दी गई। रिहाई की मुद्दत मुकम्मल होने पर जुडिशल पुलिस मॉडल टाउन और उनके घर पहुंची। शहबाज शरीफ अपने बेटे हमजा शहबाज के साथ अलग अलग गाड़ियों में कोट लखपत जेल मुंतकिल हो गए। मीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने इन हाउस तब्दीली की हिमायत करते हुए कहा है कि अगर हुकूमत अददी बरतरी खो देती है तो उनको हुकूमत का कोई हक नहीं है। एक तकरीब में खिताब करते हुए मीर जमात इस्लामी का कहना था, हुकूमत ने जलसे रोककर अपनी कमजोरी जाहिर की। जलसे करना पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का आईनी हक है। हमारा मुतालबा फर्द की तब्दीली नहीं बल्कि निज़ाम की तब्दीली है। PDM और हुकूमत में इख्तिलाफ सिर्फ इक़्तिदार का है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे, खबर सबसे पहले।